3 बेटियां बेटा मेरा, कहाँ लेके जाऊँ, कैसे पढ़ाऊंगा इसे मैं? एक आदमी कमाने वाले 10 खाने वाले हैं, अब उसका रोजगार बंद कर दिया है। वो जाए खूबसूरती। हुकूमत का काम रोजगार देना है कि रोजगार छीनना है? और जो चीजों पे काम करना उनकी तरफ बात करो। आप 70,000 खानदानों को आप तबाह बर्बाद करने पे लगे हैं। अपने जीते जी हम ये दुकान एक दुकान नहीं करने देंगे यहाँ पे। ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਕੇ ਨੇ ਪੈਟਰਨ ਇਨ ਚੀਫ ਹੈ ਵਾਲ ਸਿਟੀ ਦੇ। ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਛਾ ਹੈ ਕੰਮ ਜੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਸ ਜਿਸ ਨੋਈਅਤ ਦਾ ਉਹ ਚਲਾਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕਤਲੇ ਆਮ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਤਾਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੋਰੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਟੂਰਿਸਟ ਆਣਗੇ, ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ, ਪਰਪਲ ਟ੍ਰੇਨ ਫਿਰੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਜੇ। ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸੋਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰਿਲੀਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਹਿ ਬਜ਼ਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਹਿ ਬਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਿਰਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਤਾ ਸਾਡੀਆਂ 4-4 ਨਸਲਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕਾਵਤ ਉਹ ਹੋਣ ਕਰਨੀ। 7 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਇਹ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਨ। ਫਾਕੇ ਧੱਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਕੇ ਧੱਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੇ। ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਉਹ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਸੋਚਦੀ। ਮਕਸਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਵਰਾਂ, ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 500-700 ਚ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਭਾਣ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ? ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ? ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੀਏ? 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਾਂਗੇ? ਐ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਹੀ ਹਮਾਮ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ 2 ਜਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਖੋ ਗਏ ਨੇ, ਖਾ ਪੀ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿੱਤਾ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆਗਾ। ਸਕਾਵਤ ਹੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਕਾਵਤ। ਅਸੀਂ ਸਕਾਵਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਾ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਜੀ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਇਹ ਸੜਕ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਸ਼ੇਰਾ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰਾ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਹ ਆਮ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਦੇਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ? ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਚੁੱਕ ਗਿਆ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਇਹ ਕੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆ? ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ, ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ। ਟੂਰਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ੀ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈਗਾ? ਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼? ਆਪੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਰਹਿਮ ਖਾ ਲੇ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਨ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਛੇੜਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬੋਲ ਕਰਨਗੇ। ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਰੱਖਣਾ ਸਰ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਛੀਨ ਕੇ ਕਾਹਦੀ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਹੋ ਗਈ? ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਸੜਕ ਜਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ?
ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਖੱਪ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਹੋਇਆ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਕੌਣ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗਾ ਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹ 12 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਖੁੱਲਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ मियाँ साहब सोच रहे ने कि डॉलर किधरों आएंगे टूरिज्म वास्ते बनाएंगे तो डॉलर आएंगे बिलाल भाई आज हम गए थे प्रेस क्लब ठीक है शालीमार ठीक है। तो मैंने आप उधर वो लोगों के चेहरे देखे ताजरों के वो तो टैक्स दे दे के मुल्क भी चला रहे हैं और उनके उल्टा कत्ल हो रहा है क्यों अगर 7,000 दुकानें हटाएंगे तो आप सोचो 7,000 में ताजर 7,000 खानदान एक उसकी लेबर फिर उनके खानदान 2 और उनके खानदान मेरे 3 में तो है तकरीबन 50,000 60,000 खानदानों का मसला है अगर ये दुकानें हटाएंगे खुदा न खास्ता तो ये मुआशी कत्ल होगा पहले आवाम थी नहीं पहले तो हमारा सोचो ना अंग्रेज आके टूरिज्म करके पिके निकाल के चले जाते हैं वो तो कर देते वो तो विजिटर पे आते हैं उनके पास पैसा है लेकिन अपने अवाम का कत्ल प्लीज ना करें मियाँ साहब से रिक्वेस्ट है आप सदर भी बने उनसे पहले ही आपसे बहुत गिले शिकवे लेकिन ये काम नहीं करो अगर ये काम हर दफा आप आके करते हैं आपकी हुकूमत नहीं रहती फिर क्योंकि लोगों की बदवाएं होती हैं लाखों लोग हर दफा इन्होंने कोशिश की लेकिन नहीं हुआ इस दफा भी करेंगे लेकिन नहीं होगा इंशाल्लाह क्योंकि हमारे 1998 में भी ये मामला हुआ था तो प्लीज़ मियाँ साहब के आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस मामले को छोड़ दें ना लोगों के बेरोजगार करें ना लोगों की बदवाएं लें लाखों लोगों की बदवाएं लेंगे अगर मियाँ साहब ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो लाखों लोगों की हज़ारों नहीं लाखों लोगों की बदवाएं हैं इधर लाखों लोगों का रोजगार है भाई बच्चों के लोगों के बच्चे हैं उनके औलादे हैं वर्करों के बच्चे हैं यार किसी के बारे में कुछ सोचें 7,000 दुकानें मेरे साथ विजिट करें मैं एक एक दुकान दिखाता हूँ दुकानें बोलना बहुत MCL की पर्चियां मौजूद हैं पीछे रिकॉर्ड में नहीं है क्यों MCL की गवर्नमेंट की पर्ची मौजूद है एक रसीद है रसीद की एक वैल्यू है वैल्यू ऐसे ही दे दी इन्होंने निकम्मे बंदों को जिनके पास रिकॉर्ड नहीं पीछे है एनक मार्केट है एनक मार्केट में 400 से ऊपर दुकान है हम उधर भी मेडिसन जाएंगे। मार्केट है उधर कितनी दुकानें हैं आगे पार्टी चले जाए पीछे आप आ जाए मोची आ जाए आगे आ जाए अकबरी आ जाए ये अड्डे कितने हैं आपको लगता है ये चंद 100 दुकानें हैं ये अंदरून है उन्होंने नक्शा बकायदा जारी किया हुआ है आप उस नक्शे पे देखें हर मार्केट में उन्होंने दुकानें बताई हुई हैं इतनी दुकानें हैं आगे पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है तो मजीद दुकानें हटा के खानदानों को तबाह करके क्यों ये ज्यादती हो रही है हमारे साथ व्यूअर्स मैं अब आगे एनक मार्केट मेडिसन मार्केट और जो भी यहाँ मार्केट्स हैं वहाँ मैं जाऊँगा और अवामी राय ताजरों की राय आपके सामने रखूँगा कि ताजर इस इशू को इस मसले को कैसे देख रहा है उनके ताड़ा लाहौर खूबसूरत होने लगा जे मियाँ साहब ने फैसला कर लिया है इनू खूबसूरत बनाना है बिलखसूस वर्ल्ड सिटी पुराना लाहौर ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਮੇਕਅਪ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀ 140 ਸਾਲ ਦੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰੋਗੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਿਲਜੀ ਤੁਗਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਨਗੇ ਨਾ ਮੁਗਲੀਆ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੋਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਵੋ ਜੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੁੱਕ ਲਵੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਗਲੀਆ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਲੇਕਿਨ ਆਲੇ ਸ਼ਰੀਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਨੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ हॉस्पिटल प्राइवेट हो जाएंगे ठीक है माहौल की खूबसूरती हो जाएगी कितने गेट दे देंगे ये करने बाद ने जाके बाहर बह जाना ये सारा कुछ तबाह करके बाहर चले जाएंगे बाहर जाने वाले होंगे 21 अक्तूबर ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਜਲਾ ਕੇ ਨਾ ਆਂਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਟੇੜੀ ਮੇੜੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਸਰ ਜਾਣਗੇ। ਆਪੀ ਵੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਵੀ- ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਜ਼ੈਨੋ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਵੜ बुरा ना जाएंगे। बनना, खान फिर बाहर नहीं आ रहा। खान इंशाल्लाह आएगा और आके रहेगा, और जिस दिन आएगा इंशाल्लाह मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर लो, ये बंदे इत्थे नहीं रहेंगे, ये फैमिली इत्थे नहीं रहेगी। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਭਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਖਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗੀ ਭਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਖਲੰਡਰਾ ਥਾ। ਖਲੰਡਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਲੰਡਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰ ਇਹ ਪਰਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਚਾਬੀ ਦਿੰਦਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਪਰਚੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਬਗੈਰ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਗੈਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ? ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌਰ 'ਚ ਹੈ ਹੁਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਸ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਜ਼ਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲ ਬਣਾਤੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਗਜ਼ਾਫੀ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੀ ਚੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ? ਰੁਪਈਆ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਐਸ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। आवाम ਦਾ खून चूस लिया। जी व्यूअर्स, आज 2 बजे से लेके अब तक हमारा भी बुरा हाल हो गया है और ताजर भी इस वक्त अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं। इश्यूज़ आपको पता है। इस वक्त मैं ऐनक मार्केट में मौजूद हूँ। ये बिल्कुल शालम मार्केट के या शालम चौक के साथ है। तो यहाँ ऐनक मार्केट की जो ताजर कम्युनिटी है, जो आज एक्टिव भी रही है, प्रेस क्लब भी गई है, इनसे हम ये पूछते हैं कि लाहौर की खूबसूरती के साथ ये क्यों रुकावट डालना चाह रहे हैं? सर एक तो हमारा पास अगर जो नैरेटिव आता है ना, अगर लाहौर शहर को, अंदरून शहर को खूबसूरत बना रहे हैं तो आप क्यों रुकावट डाल रहे हैं? आपको तो इसमें मियाँ साहब के साथ शबाना रोज शाना बशाना खड़ा होना चाहिए। बात यह है कि हर एक की अपनी अपनी एक मजबूरी है। ठीक है। हमारा रिज़्क हमारी मजबूरी है। वो अपनी मजबूरी लेके चले हुए हैं कि उन्होंने खूबसूरत दिखाना है। जो पहले दिखा रहे हैं वो सबको पता है, और ये जो हमारी मजबूरी है, ये हमारे कई ख़ानदानों की मजबूरी है। तो इससे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। पहली बात तो ये है, जिस हद तक जाना पड़ा हम जाएंगे, हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। सर मियाँ साहब आप ही की दुकानों को, आप ही के इलाके को खूबसूरत करना चाहते हैं। जाहिर है घर जला के कौन सी खूबसूरती बनती है, इतनी तो समझ सबको है। ये तो घर जलाने के मिसमार करके उसके सर ऊपर माँ क्या अपना घर जला सकती है, माँ कहते हैं सारे, हम सबकी माँ है वो। सर वो आपकी है, हमारी नहीं है। नहीं नहीं माँ वाली सर, बात नहीं है ये इसमें। कैसी नहीं माँ है कि नहीं जो अपने घर जला रही है? ये कौन सी माँ है? ये कैसी माँ है कि जो बच्चों को यतीम मस्कीन कर रही है? ये बच्चों में ये लोगों के अंदर बेरोजगारी पैदा माँ कर का रही है। काम होता है ना घर को खूबसूरत बनाना। तो माँ भाईजान ये फूल बूटे लाना। खूबसूरत, ये फूल बूटे लगाएं, हम कब कर रहे हैं? मना कर रहे हैं। आप यहाँ पे फूल बूटे लगाएं, हम साथ हैं। आप यहाँ पे भाई फूल बूटे लगाएं, हम साथ हैं। ये कौन से फूल बूटे हैं? हमारे घर तोड़ के तो आप फूल बूटे लगाएं? ये कैसा फूल है खूबसूरती? मुझे बताएं ना कि 570 अरब रुपए का जो मंसूबा है, वो आप 570 करोड़ रुपए के जो लोगों का रोजगार खत्म कर रहे हैं, तो क्या फायदा उसमें? बताएं आप। 16 किलोमीटर की जो ये ट्रेन चलनी है 570 अरब रुपए में, इसका किसको फायदा है? सर इतने गोरे फिरन के, गोरियां फिरन तो के सर गोरे पहले भी आते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता, सर आपको नहीं पता, यहाँ पे अंदरून में आप जाके देखें, जगह जगह पे गोरे आते हैं, विजिट करते हैं, वो खूबसूरती ये देखते हैं। ये खाली ये नहीं कि फूल बूटे लगाएंगे तो वो खूबसूरती नजर आएगी उनको, इनको वैसे भी खूबसूरती नजर आती है। ये मियाँ साहब मियाँ साहब ने कुछ सोचिਆ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਪੈਟਰਨ ਇਨ ਚੀਫ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਾਯੂਸ क्यों हो सकता है? ਤੁਹਾਨੂੰ किधरे बड़े पोश एरिया च ਤੁਹਾਨੂੰ दुकान, आपको दुकानें दे दें कि आप यहाँ पे दुकानें खोलें। हमें भाई पोश एरिया में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने 40-50 साल इस मार्केट को दिए हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, हमारे बड़ों ने यहाँ पे कुर्बानियाँ दी हैं। आप जो बात कर रहे हैं ना, इसमें जी मियाँ साहब का है। मियाँ साहब ने क्या किया? मियाँ साहब भी पहले ताजर थे, उनसे पूछें कि जो बंदे के साथ 25 से या 50 मुलाजम एक दुकानदार के साथ है, या 10 मुलाजम है, या 5 मुलाजम है, वो खाली दुकानदार नहीं तबाह होगा, उसके साथ मुलाजम भी हैं, उनके भी घर हैं, पीछे फैक्ट्री मालकान भी हैं, उनका भी रोजगार लगा है। यहाँ पे 70,000 खानदान नहीं है, यहाँ पे 1.5-2 लाख खानदान है जो बेरोजगार होगा। आप मुझे बताएं कि जो मुलाजम आदमी है, मेरी दुकान गई है, मेरे पास 2 मुलाजम है, वो भी गए, वो 20-22 हज़ार रुपये जो तनख्वाह लेने वाला बंदा, वो भी बेरोजगार हो गया, वो फिर कल को क्या करेगा? आगे मियाँ साहब ने जो मरियम साहिबा पंजाब की वज़ीर आला हैं, इन्होंने थरे तोड़े हैं, इन्होंने जो फटे उठवा दिए हैं लोगों के। आप वहाँ पे देखें कितनी बेरोजगारी फैली है, वो लोग क्या कर रहे हैं मुझे बताएं।
आप पिछले 2 माह का रिकॉर्ड निकाल के देख लें, चोरियां डकैतियां बढ़ गई हैं। क्यों बढ़ी हैं? इसी वजह से बढ़ी हैं कि बेरोजगारी मुल्क में ज़्यादा। अब आप 7,000 खानदानों को भी बेरोजगार करेंगे तो लोग क्या करेंगे? या खुदकुशियां करेंगे या डकैतियां चोरियां करेंगे, कुछ ना अपने बच्चों को पालने के लिए कुछ करेंगे ना। हो सकता है ना सीएम साहब ने ताड़े लिए कोई या मियां साहब ने कोई बड़ा प्लान सोचे होए। मैं नहीं कह रहा, वो कहते ने, वो कह रहे हैं ना, उन्होंने क्या बताया अभी तक? प्लान क्या दिया? उन्होंने सिर्फ यही प्लान दिया कि दुकानें खाली कर दी, हमने तोड़नी है। प्लान तो उन्होंने कोई भी नहीं दिया। उन्होंने क्या प्लान दिया? आपके पास कोई है इशू तो बताए ना। 25 साल लगेंगे। ये जो भाईजान अभी कहते कि माँ है, ये एक बचपन में गाना सुनते थे कि घर को आग लगा दी घर के चिराग ने, ये वो साहब हो रहा है। सर ऐसे पानी पाने वाले ने, फुल वाले लोग उन्होंने को पहले पानी का निजाम ठीक करन, सब कुछ करन, ठीक है। सड़का दी सड़का दी कि सड़का ते रोटी खा गए, बिजली का निजाम ताड़ा ठीक नहीं। आज दिन छालवी अग लगी होती है, कई मजदूर बेचारे बेरोजगार हो गए ने। इत्थे देखो ना जिन्ना तबका बैठा है ताड़ा कि जरा बेरोजगार हो रहा है, फिर साढ़े घर नूं अग लगेगी तो असीं तो नहीं माफ करांगे, असीं भी अगले का घर साड़ांगे। ये मार्केट कितनी पुरानी है हैनंग मार्केट? ये कम से कम भी ये 60-70 साल हो गए इसको, यानी पाकिस्तान के साथ 60-70 साल हो गए हैं भाईजान। वो तो अपनी एसीओ में बैठे हैं, ठीक है। पुलिस का निज़ाम ठीक हो रहा है, पुलिस का जा रहा है सरेआम वही रिश्वतखोरी चल रही है, वही लूटमार हो रही है। थाने चले जो पैसे दिए बगैर आप बाहर नहीं आ सकते। हकदार जो है वो जेलों में साड़ा, ना हक जो है उसमें जा रहा है। जी सलाम भाई, कैसे हैं आप? आपका बहुत शुक्रिया, आपका तशरीफ आवरे का, हम आपका बहुत मशकूर है। आप हमारा आवाज़ बन रहे हैं, आपकी मोहब्बत है, आप टाइम दे रहे सबसे हैं। पहले तो हमें ये अर्ज़ करना चाह रहे हैं मियाँ साहब को कि मियाँ साहब आप तो पहले सीएम साहिबा कह रही है कि मैं बिलासूद कर्जे दे रहा हूँ कारोबार करने का, हाँ जी, और ऑलरेडी तैयार जो हमारा चलता कारोबार है इसमें आप सुअर छोड़ रहे हो, ये तो हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहाँ तकरीबन मुझे बजाते खुद 16, 17, 18 साल हो गए, ये ऐसा मार्केट नहीं था कि आज आपको रौनक नज़र आ रहा है। इसमें कोई बकरियां भैंस बांधते थे और चले जाते थे। हमने यहाँ मेहनत की है, यहाँ हमने टाइम सर्व किया है, यहाँ हमने इन्वेस्टमेंट की है। आज बारी यही आ गई कि अपना इन्वेस्टमेंट समेट लो और यहाँ से निकल जाओ। ये मुमकिन नहीं है, ये हम करने नहीं देंगे। अगर वो हमारे लिए अच्छा भी सोचे तो इसमें कोई अच्छाई वाला सोच है ही नहीं, क्योंकि एक चलता कारोबार ये खराब करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं है। सर वैसे वो तो कहते हैं असी अवाम दे, यानी अवाम को हम रिस्क भी प्रोवाइड करेंगे, महंगाई भी खत्म करेंगे, हम रोजगार भी देंगे, हम करप्शन भी खत्म करेंगे। पाकिस्तान उड़ान भर चुका हुआ है। मैं तो ये खबरें सुन के आता हूँ। ये जो मुझे बताएं, आज तक महंगाई से टीवी के ऊपर खत्म हुई है। मियाँ साहब शबाशी साहब फरमाते हैं 0.2% महंगाई है। 2 महीने पहले घी का पैकेट 415 रुपए का था जो आज 550 का है। तो ये महंगाई कौन सी खत्म हो रही है? चीनी 130, ये क्या करेगा? चीनी 60-70 लोग जो बेरोजगार हो रहा है, ये क्या करेगा? अभी जो ये मौजूदा ये 60-70 लोग हैं, इससे ले लो, इससे ले लो, इससे ले लो। मैं मैट्रिक करके यहाँ पे आया था, ठीक है, 84 में। मैं लूंगा आपका, ये मेरी शॉप है, ठीक है, ठीक है जी। जी सर। अब मुझे बताएं कि कितने साल हो गए मुझे यहाँ पे? आपको 94, हाँ तकरीबन 41 ईयर्स। यहाँ पर कुत्ते करते थे जब हम आए हैं। 8-10 दुकानदार थे, ऐसा ऐसा सबको, इनको भाई को सबको बुलाया। ये सबसे पुराने हैं। मुझे बताएं आप, ये आपकी दुकान है, आपको दुकान से आपकी दुकान छीन ली जाती है, आप बच्चों को रोटी कहाँ से खिलाएंगे? दादा साहब से या लोगों भाइयों से, बहन भाइयों से मांग के? अब मुझे दुकान से निकाल जाते हैं, यानी कि दुकान मेरी गिरा देते हैं। मेरे 6 बच्चे हैं, मैं कहाँ से खाना खिलाऊंगा उनको? मुझे बताएं। एक दुकान में 5-5, 6 बंदे हैं, ये किधर जाएगा? आगे घर, मुझे अब मेरी बात का जवाब दें। सर ये तो सीएम साहबा बेहतर समझती है ना। नहीं, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। मुश्किल हो जाएगा, फिर वही दाता साहब ही बचेगा, दाता जी जवेरी रहमतुल्लाह अलैह। लोग फिर डाके करेंगे, डाके 84 से मैं बैठा हुआ यहाँ पे। अब कह रहे हैं जी खाने ही खाएंगे ना दरबार से भी, जो बच्चों की बाकी रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से पूरी होंगी? वो सीएम साहिबा देंगी। यार देखो बिलाल वो भाई, जी कहते पढ़ा लिखा पंजाब। मुझे बताएं, जब मेरी जेब में पैसे नहीं होंगे मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा? वो चोट डकैती बनेंगे। ये दुकान है, ये गवर्नमेंट ने गिरा दी, मैं इधर आ गया हूँ, ठीक है। मुझे बताएं, मुझे खाने को कौन देगा? बच्चों को कौन देगा? कौन पढ़ाई लिखाएगा? कहते हैं जी पढ़ा लिखा पंजाब है। कौन सा पढ़ा लिखा पंजाब है? ये हमें ऊपर बजाने के चक्कर में है, या हमारे बच्चों को डकैत बनाने के चक्कर में। सर आपको नहीं लगता सीएम साहबा इस वक्त
लाहौर को खूबसूरत करना चाहती है, पंजाब को। कोई खूबसूरती कोई चक्कर नहीं है। पहले भी नवाज शरीफ थे, जब इनको यानी कि दूसरे दिन की इनकी हुकूमत खत्म हो गई थी, जब सब ताजर वगैरह सब बाहर आए हैं, सब ताजर बाहर आए, दूसरे दिन की इनकी हुकूमत चली गई है, याद है आपको 98 में। अब फिर ये हमने बच्चों को, मुझे बताएं, बच्चों को रोटी देनी है या फूल पौधे देने हैं, आप बताएं। रोटी तो फिर बिलाल, आपने जो पहले एक सवाल किया था कि रोजगार देंगे, करप्शन को खत्म करेंगे और खुशहाल सा एक माहौल बनाएंगे, ये हुकूमत का नहीं, ये जी बिल्कुल। अगर आपने देखा होगा, आप लोगों की टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज चलती थी कि जो पंजाबी असेंबली है उसका तनख्वाह इतना गुना बढ़ा दी गई है। हाँ जी। और वो पैसे कहाँ से जाते हैं? मेरा और आपके जेब से। ठीक है। तो जाता है ना। दूसरी बात ये है कि अगर मियाँ साहब कह रहे हैं या उसका जो सीएम साहिबा है, हम उसको सीएम नहीं मानते क्योंकि कोई प्रैक्टिकली इस तरह कोई चीज़ है नहीं। हम 47 वाला सीएम बना लेते हैं उसको, चलो खुशामदीद आप सीएम बन गए। उसकी ख्वाहिश है कि मैं एक बड़ी कुर्सी पे बैठ के और कहीं से टिकटॉक बना लूँ और इसको वायरल कर दूँ। उससे कुछ नहीं बनना। इस तरह ना कौमें बनते हैं, ना इस तरह किसी के कारोबार चलते हैं। कि आप, मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया है कि चलता कारोबार आप गिरा रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं कि बिलासूद कर्जे ले लो और कारोबार कर लो। ये दोनों किस तरह मुमकिन है यार? इसके लिए हम खुद बजाते खुद जो हमारा चलता फिरता कारोबार है, इसको अगर वो हमसे छीन ले तो हम कहाँ जाएंगे? जिस तरह भट्टी साहब ने कहा कि मुझे 41 ईयर इधर हो गए हैं, 49, तो ये बेचारा कहाँ जाए? इसके बच्चे कहाँ जाए? अब हम बच्चे थे, हमारे बच्चे हो गए हैं, अब हम जाने वाले, हमारे बच्चे इधर आके क्या करेंगे? इधर तो हमारा ज़िंदगी गुजर रही है, अब हम चले जाएंगे, हमारे बच्चे इधर सुकून से तो नहीं बैठेंगे। यही तलवार सिर के ऊपर लटका होगा कि दुकानें खाली करो, हमने गिराना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। तो आजिज़ाना दरख्वास्त है जो मौजूदा हुकूमत है पंजाब की कि ये जो आप लोगों ने ये जो मंसूबा बनाया है ना, इसको, ये बहुत छोटा पंजाब नहीं है, बहुत बड़ा है। मुल्तान ले जाओ, गुजरावाला ले जाओ, फैसलाबाद ले के और जाके ये पैसे इन्वेस्ट करो। अगर आप लोगों ने ये खूबसूरती बनानी है तो फिर एक और भी मसले का हल है, कोई बड़ा ट्रेड सेंटर बनाओ, हमें जगह दे दे कि जाओ भाई कारोबार करो, मोस्ट वेलकम, हम जाएंगे, हम कारोबारी लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे? हम तो अपने कारोबार के लिए सुबह निकलते हैं, शाम को चले जाते हैं। अगर इनके पास कोई पॉलिसी हो, ना इनके पास कोई पॉलिसी है, ना इन्होंने हमें अभी तक कोई बात की है कि हमने ये गिराना है और इस तरह ये करना है, ना मुआवजा है, ना कोई मुतबादिल है, और ड्रोन कैमरों से वीडियो बना रहे हैं कि ये भी गिरेगा, वो भी गिरेगा, इधर भी गिरेगा। तो ये कौन सा मंतक है? सर मियाँ साहब पैटर्न इन चीफ बने, कोई खूबसूरत, मैं लेकिन आप लोगों के जज्बात सुनता हूँ, देखो तो मैं भी अफसरदा हो जाता हूँ। अगर मियाँ साहब को खूबसूरती पसंद है तो उसका वैसे भी मरी में कोई है गेस्ट हाउस, कोई चीज़ है। आप शहर, अगर शहर आप खूबसूरत करना चाह रहे हो तो वो तो पुराने ज़माने में इधर टांगे चला करते थे, तो वो टांगों वाला दौर तो गया है। अगर आपने पुराना शहर बहाल करना है तो फिर टांगे भी साथ ले आओ, उसको भी चला लो। अगर टांगों वाला माहौल बनाना है, वापस जाना है आपने 1972, 73, 63 में, तो फिर टांगे भी चलाओ, वो गाड़ियाँ बंद कर दो, रिक्शे बंद कर दो। इससे कौन सी बहाली आएगी कि मैं मार्केटों को गिरा दूंगा, ये आपका पुराना शहर नजर आएगा? ये कौन सा मंतक है? ट्रेन में बैठ के सफर करना है ना। हाँ जी, अगर ट्रेन चलानी है ना, ट्रेन में बैठ के सफर करना, उससे अच्छी हमारी मोटरसाइकिल है जिससे हमने रोजगार कमाना है। ट्रेन में बैठ के यहाँ से वो दिल्ली दरवाजे उतर जाएंगे, क्या फायदा उसका? ये अच्छी जगह कहीं पैसे लगाएं। ये इधर यहाँ से लोहारी से बैठे, शालमी उतर गए, शालमी से उतर दिल्ली दरवाजे उतर गए, क्या फायदा? सबके पास बाइकें हैं, शुक्र है अल्लाह का, मोटरसाइकिल पे हम आ जा सकते हैं। ये 60 साल की उम्र है, सारा उम्र हमने क्या कहते हैं मोटरसाइकिल पे गुजारी है, अब भी गुजार लेंगे। हमने ट्रेन को क्या करना, वो तो स्टेशन पे चल रही है, टिकट दे, जहाँ मर्जी सैर कर ले। कि ये बहुत ज़्यादा अहम है सैर। आप बताएं मुझे, सारी बातें अलग, बात है कि बच्चों को रोजगार देना है। सर मसला ये है उधर हमने इस हुकूमत को मुस्लिम लीग नून के लिए बेहद कोशिशें की इनको लाने के लिए। हमने पीटीआई के लिए पीटीआई को बिल्कुल खैर बात कहा, इनके पीछे लग के। मेरा अपना भाई मर्डर हुआ इसी चक्कर में, मेरा अपना भाई मर्डर हुआ है, इनकी खातिर जाने ठीक है। और ये हमें मार रहे हैं दोबारा। उनके नून लीग के खास बंदे हैं, ये ना बताएं।
हमारा असर सुख है, हर चीज है, आज भी पता है। जय मियां नुमान से जाके पूछें, उसके बाद नंबर नहीं आए, सरदार याद से पूछे कि हमारे पास नहीं आए, हर चीज नहीं है। ये हमें किस चीज की सजा दे रहे हैं भाई? ये मेरी तीसरी नस्ल है, मेरे बच्चे यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे हम? बताएं हमें। हम तो सिर्फ मौलवियन साहबा से ये चाहते हैं कि हमें ये बता दें कि कह रहे हैं कि मुल्क की इकोनॉमी को मजबूत करना है, कि आया सकाफती विरसा बहाल करके भी इकोनॉमी मजबूत होगी? अगर तो ऐसे इकोनॉमी मजबूत होती है तो फिर हमें बताएं आप उसका क्या तरीकाकार है इकोनॉमी सेट होने का। आपके भाई ने नून लीग की खातिर अपनी जान दे दी। जी सर, जी सर, पूरी मार्केट का हर बंदे को पता है। सरदार रियाज वहाँ पे पहुँचा, मियां नुमान वहाँ पे पहुँचा, हर बंदा वहाँ पे पहुँचा। इस मुल्क में हमें इंसाफ नहीं मिला, हम तो नहीं अभी हुकूमत में आने के बाद भी नहीं मिला। ना 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 ना, हमने अल्लाह की रजा के लिए छोड़ा उन्हें, अल्लाह की रजा के लिए छोड़ा। अल्लाह ने उनको सब कुछ दिखाया, उनके साथ बहुत कुछ हुआ, अल्लाह ने दिखा दिया। पाकिस्तान से हमें कुछ नहीं मिला। अब जा जाके हम अपनी बच्चों का रिज़्क कमा रहे हैं, रिज़्क हक हलाल का रिज़्क कमा रहे हैं। मेरे वालिद साहब ऐनक मार्केट में सबसे पहले आए, उसके बाद 65 सामने, वो सामने पहले थे। उसके बाद ये मार्केट बनी, फिर इधर आए हम, इधर से हम पढ़े भी और हमने ना मार्केट में अपने आप को बरकरार भी रखा अल्लाह की मेहरबानी से, और ये सारे नशीब अफराज देखे हैं। और रही बात लोगों की बद्दुआ जब लगती है ना तो ये ठीक नहीं है। हम तो अब भी कह रहे हैं कि नून लीग, अगर मैं लोगों को फेस करता हूँ ना, लोग हमें कहते हैं ना, हमारे मुखालफिन हमें कहते हैं कि ये तुम्हारी नून लीग ही है, तुम्हें मार रही है, आगे भी तुम्हारा भाई भी मरा नून लीग के लिए, तुम्हें क्या मिला? अब तुम्हारे कारोबार भी जाएंगे, तुम्हें क्या मिलेगा? अब बताएं हम क्या करें? मेरा मरियम साहबा से यहाँ तो हमसे बैठ के मुज़ाकरात करें, यहाँ पे बैठे हमें रिस्क दें, रिस्क के लिए कोई जगह दे दें, बस सारी मार्केट उठाएं इकट्ठी। अब मुझे ये बताएं कि आप टकसाली से शुरू हो रहे हैं और आप कश्मीरी घाटी तक घूम के जा रहे हैं, उसमें कितनी पीछे आबादी आ रही है, फसील लैंड बनेगी। आया कि सिर्फ एक मियाँ साहब, हमारे लीडर साहब जो हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि मैं सकाफती विरसा देखूं, मुझे सारे दरवाजे नज़र आने चाहिए। क्या उनको ख्वाब में नज़र नहीं आ सकते? पुरानी पिक्चर्स देख लें, पुरानी फिल्में निकाल के देख लें वो अपनी। एक नून लीगी जिसने अपने घर में एक जी जवान मौत देखी नून लीग की खातिर, आज वो इतना तल्ख क्यों है? सर क्या करें हम, मुझे ये बताएं। मैं लोगों से बातें भी सुन रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बर्दाश्त कर रहे हैं। ये मार्केट में बैठे हैं ना, कई भाई हैं जो नजरियाती नहीं है उनके, नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है ना, लेकिन हमसे सबसे करते हैं। हर बंदे को हमने फेस किया है, हर बंदे को हमने फेस भी है। हमने किसी क़यादत को इस आजमाइश में नहीं डाला कि मेरा भाई तुम्हारी पार्टी के लिए मरा। कभी हमजा साहब ने आवाज उठाई उसके लिए? ओ नो जी नो, हमजा साहब क्या चीज़ है? हमजा साहब इस हल्के से होते हैं, इसलिए बात क्या? सर जी ये हमारा हल्का मियां नुमान का सरदार याज का था, ये हमारा प्रोफेशनल एरिया है। अच्छा। हमारा आपसे कह रहा हूँ कि मेरी तकरीबन मुझे मार्केट में 39 साल हो गए हैं। 7वीं क्लास से मैं पढ़ भी रहा था और यहाँ पे भी आ रहे थे हम साथ वाले साहब के साथ। एक सवाल है, मैं लीडरों को देखना चाहता हूँ, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक हो, आपके घर एक जवान मौत है, कभी उनके वालदेन, आपके वालदेन, बहन भाइयों पे पार्टी की तरफ से दस्ते? ना 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 ना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कभी कोई नहीं आए। सिर्फ उनका एक लोग हैं जो ऊपर की सतह पे वर्कर बने हुए हैं, वो मियाँ तारक साहब जैसे हैं, ठीक है, तो वो जो मेयर भी रह चुके हैं, ठीक है, वो लोग हैं, उनकी आगोश में जो उनके हजरत जी करेगा। हम तो सिर्फ इनको, नवाज शरीफ फैमिली को ये कह रहे थे कि ये मुल्क की बका के लिए बहुत अच्छे हैं, ये मुल्क को लेके चल रहे हैं, लेकिन ये हमारा रिस्क है ना हमसे, तो हमारी माफ़ी। हम खुदकुशियों पे मजबूर होंगे, खुदकुशियों पे, मैं हकीकत कह रहा हूँ। और ना सर, ताड़ा भरा आगे चला गया, जज्बाती नहीं होना, अल्लाह की ज़ात रिस्क दे देती है। मैं वैसे तो सर मेरे 3 भाई हैं, 3 भाई हैं हम, 2 इधर बैठे हैं, एक उधर बैठा है, एक साथ और बच्चे को बिठाया हुआ है, हमारी दुकानें सारी जा रही हैं, तो हमारा क्या है बताएं? वही ये अपने भट्टी साहब वाली बात आ गई, हम बच्चों को कहाँ लेके जाएं? बच्चे पढ़ा लिए, नौकरी नहीं है, बच्चे पढ़ा लिए, स्टडी करा ली। अयाज सादिक साहब को क्या मेरिट पे जॉब दे? अयाज सादिक साहब कहाँ से दे सकते हैं?
सर आती कोटे में मिलती है, मेरिट में मिलती वो है, सर legal नहीं होती है। देते ना, क्या करते हैं आप? वो सिर्फ चेक इसलिए करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ, इसका भाई गया, मेरा बेटा गया 20 साल का, अभी मैट्रिक की सनद भी स्कूल में पड़ी हुई है। एक ताई डॉक्टर है, उसने इंजेक्शन लगाया, पूरी मार्केट गुआ है। उसको यानी कि टांग में पूरा जहर फैल गया, टांग काटी, 4 दिन बाद वो अल्लाह को प्यारा हो गया। अब आपका बच्चा बड़ा हो गया, आपका सहारा बनेगा, ठीक है। और मुझे बताएं मैं क्या करूं? ये देखें मेरा हालत, ये अभी ये खुद भी अब मैं गिरा हूँ छत से। हम ये कहते हैं, औलाद जो है बाप का सहारा बनती है। मेरा 20 साल का बेटा चला गया। मैं सबसे पहले शहबाज शरीफ को यानी कि ना वो पूरी लेटर भेजा, कोई जवाब नहीं आया। फिर मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में गया हूँ, वहाँ पे 3 दफ़ा यानी कि ना उसको डॉक्टर को बुलाया, वो ताई डॉक्टर है, वो नहीं आया। मैं किससे इंतजाम मांगू? हमारे मेडिकल, मेरे भाई के मर्डर केस में मुखालफिन ने मेडिकल चैलेंज कर दिया। हमारे मुखालफिन ने मेडिकल चैलेंज किए। मुंशी बोर्ड ने पूरा जनाब अली ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब की अप्रोच पे हमारे अगेंस्ट खिलाफ फैसला लिखा, हालांकि फ्रांसिक में हमारे हक में था हर चीज़। ये मियां मुंशी अस्पताल ना जनाब इंतहाई करप्ट, वहाँ पे ओपन नाम का बंदा था डॉक्टर, जो हेड था उस बोर्ड का, इंतहाई करप्ट आदमी। ठीक है, ख्वाजा इमरान नज़ीर हेल्थ मिनिस्टर था उस वक्त, अल्लाह सानी करे। हेल्थ मिनिस्टर। लेकिन हम ये चाहते हैं कि मोहतरमा से हमारी सिफारिश है, हम आज भी उनके लिए जनाब अली ताबेदार हैं, लेकिन हमें मिले, हमें बताएं। ताबेदारी अल्लाह की होनी चाहिए। मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूँ ना, हमें नहीं ना चाहिए ऐसा। अगर नहीं मिलते खत्म। वो पंजाबी की मिसाल है सर, बांदरी के पैर थले ने अपने बच्चे थले ला लेते, सानू कोई चक्कर नहीं आगा देना। व्यूअर्स, ये मैंने अवामी नहीं इंशाल्लाह अल्लाह करे ना, ऐसा वक्त है हम तो आज भी गए थे, हम कह रहे थे हमारे ऊपर चला दो जो चलाना है। ये देखे मुझे अभी तक पट्टी बनी हुई है। मैं सुबह उधर प्रेस क्लब के अंदर ही था। प्रेस क्लब में ये सारी मैं बरकाती में मैंने वीडियो बनाई हुई है। मार्केटों के लोग जो है ना, यहाँ तक आ गया कि जी आप लोग रास्ता छोड़ दें, आपके अंदर बात सुन रहे हैं, फिर रास्ता छोड़ दिया तो हमारा कौन सुनेगा भाई? ये अवामी राय आप सुन रहे हैं। देखें जी, पहले तो इनके लिए और फिर इन भाई के लिए बिलखुसूस जिनके घर की, सर एक सेकंड, ठीक है आपकी बात आ गई, जिनके घर 2 जवान अमवात हो जाएं, बल्कि शहादतें हो जाएं, तो अल्लाह ताला इनके वालिदैन के लिए वालिद हैं। क्योंकि हम भी जब हम वालिद नहीं बने थे ना, पेरेंट्स नहीं बने थे, हमें नहीं समझ आती थी कि बाप की मोहब्बत क्या होती है। मैं माँ की तो नहीं जान सकता क्योंकि आई एम नॉट अ फीमेल, तो मुझे तो पता है बेटा आपके सामने, और बेटे को हल्का सा भी कुछ हो, यकीन करें रब्बे काबा की कसम, आपको लगता है या अल्लाह मुझे उठा ले, मेरे बेटे को कुछ ना हो, ये हालत होती है। इनका हौसला और इसका भाई, और भाई से भी एक अलग मोहब्बत है। सर भाई बाजू है, भाई बाजू है, भाई आपका खून बाजू है, चला गया तो भाई की मोहब्बत उस जगह पे नहीं अभी आए हुए। भाई की और बेटे की मोहब्बत, यहाँ इनको भी इंसाफ नहीं मिला। दूसरा मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये जो ताजर है ना, ये पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। बस आपने लाहौर को खूबसूरत बनाना है, आप ज़रूर बनाएं, लेकिन इन्हें फैसिलिटेट करें। आपके पास 1101 तरीके हैं। जब मैं किसी कानून की बात नहीं कर रहा, जब आप लोग अपनी मर्जी का कोई फैसला कराना चाहते हैं ना, वो ना भी हो रहा हो, आप उसको इस खूबसूरत अंदाज में लीगलाइज कर लेते हैं कि आपका काम हो जाता है। यानी काम कराना हो, नियत हो। 1 लाख खानदान मुतासर हो रहा है, 1 लाख बिल्कुल इसी तरह आपने लाहौर को खूबसूरत बनाना है। मियाँ साहब, अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, 3 दफ़ा इज्जत वाली चादर पहनाई है, क्योंकि हुक्मरानी रब की तरफ से होती है। आप PM भी बने हैं, तो आप दोबारा अब आवाम की तरफ से, अंदरून शहर के ताजरों की तरफ से इज्जत वाली चादर पहने, इनको छेड़े बगैर कोई ऐसा प्लान बनाएं, कोई ऐसा नक्शा डिज़ाइन करें कि इनके रिस्क, इनकी दुकानें मुतासर किए बगैर आप लाहौर को खूबसूरत कर दें। फिलहाल भाई बिल्कुल साथ हमारी नौकरियां हैं, हम सारे यहाँ पे जॉब करते हैं। यहाँ पे 500 दुकानें हैं जी जी, 500 दुकानों पे 2-2, 3-3, 4-4 वर्कर हैं जो 1000 रुपया 500 रुपया रोज का लेके जाते हैं। वो सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हमें ट्रेन मंसूबे यहाँ से वो कहीं और भी कर सकते हैं, लेकिन हमें जो यहाँ से रिस्क मिलता है वो और कहीं से नहीं मिल सकता, क्योंकि ये बहुत कदीम मार्केट है, ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है जी। ये खूबसूरती है ना, वोट को इज्जत दो, मियाँ साहब को उसी वोट अब उसी ताजर को भी इज्जत दो, ताजर को भी इज्जत देना। और ये जो मेरे भाई हैं, ये बहुत बड़े नून लीग के
सपोर्टर हैं। हमारे इनके वालद साहब, हम सारों ने मिल के खुद है सादक साहब को वोट डलवाए हैं और हम सारे उनके बहुत बड़े सपोर्टर हैं। और हम लोग उनसे एहतजाज करने का मकसद ये है कि हमें खाना तो कमाने दें, हमें प्रोजेक्ट इधर नहीं चाहिए। इधर हमारा रोजगार लगा है, वो प्रोजेक्ट कहीं और भी ले जाएंगे हमें। हमारे ये कितने वर्कर हैं, इनमें से 6-7 ताजर हैं, बाकी सब बच्चे नौकरियां करते हैं, जो पता नहीं कोई शदरे से आता है, कोई शादबाग से आता है, सबका रोजगार चला जाना है। तो मरियम नवाज साहबा ये प्रोजेक्ट किधर कहीं और ले जाएं, लेकिन हमारे साथ जुल्म ना प्लीज करें, हमें अपना रिस्क कमाने दें। पहले इतना मुश्किल गुजारा हो गया है, पहले ही हमारे सब लोग किरायों पे रहते हैं। हम लोग ये बताएं कि कौन से मुल्क में मईशत को ऐसे स्टैंड किया जाता है? हमें कोई एग्जांपल दें, हमें एग्जांपल दें कि कारोबार मुतासर करके लोगों को बर्बाद करके रोडों पे ला के भूखा करके खुदकुशी पे मजबूर करके और फिर उन्हें कहा जाए कि जनाब ये मईशत बहाल हो रही है। ये तो कोई नहीं। ये आपने अवामी राय सुन ली, मेरी रिक्वेस्ट है बिलाल भाई ये क्लिप पूरा चलाना सब चलेगा, मेरा वादा है। मैं कराची से आया हूँ, कराची से। मैंने अपना चश्मा कराची की मार्केट से नहीं बनवाया, मुझे इस मार्केट से प्यार है। यहाँ पे होलसेल इस मार्केट से प्यार है, लोगों से मार्जिन लेते हैं हम लोग। आप इधर कराची से चश्मा बनवाने आए हैं? मैं इधर से ही बनवाता हूँ चश्मे। अच्छा, कराची से नहीं बनवाते? मैं वहाँ से नहीं बनवाता हूँ। इस मार्केट से क्यों प्यार है? बस एक कुदरती प्यार है हमें। हम यहाँ पे होलसेल रेट, हम यह है कि हम यहीं पे जनाब, हम पले बड़े सारा कुछ यही हुआ, कराची शिफ्ट हो गए, वो एक अलग बात है, लेकिन हमें इस मार्केट से प्यार है और अब से नहीं है, हमें बचपन से प्यार है इस मार्केट से। और इस मार्केट को जब मिसमार करने की बात आती है तो दिल दुखता है। तो दिल दुखेगा ना, मेरे आंसू निकल रहे हैं इस बात के ऊपर यार। क्यों ऐसा कर रही है ये हुकूमत? गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, गरीब के लिए कोई कानून नहीं है। गरीब को जब चाहते हैं उठा के अंदर कर देते हैं, जब दिल करता है इनका जनाब उनको सजाएं देते हैं। ये अमीर के लिए जनाब सारे कानून, बेहतरीन कानून उनके लिए जनाब, आप आज़ाद हैं, आप जिधर मर्जी जाएं, आप जो मर्जी करें, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा, है जी। इन वडेरा शाही ने और इस चौधरियों ने जनाब मुल्क को तबाह कर दिया जनाब, इस जिम्मेदारा निज़ाम ने तबाह कर दिया जनाब। सब वो कहते हैं हमने खूबसूरत बनाना है। क्या खूबसूरत बनाना है? और ये यहाँ का जो बिल्डर है वो सबसे बड़ा है, यहाँ का बिल्डर जो है, बिल्डर सबसे बड़ा बिल्डर यहाँ का सबसे बड़ा, उसने ज़रूरी ज़मीनों को तबाह और बर्बाद करके रख दिया जनाब उन्होंने। अब जाके तो देखें जरा, अब दुनिया का हाल देखें जरा, जहाँ पे खूबसूरती थी वहाँ पे जनाब मनहूसत टपक रही है। अब मनहूस हुए हुए इलाके, वीरानी पड़ी हुई है वहाँ पे, सारे जो है ना बदवाएं देने के लिए बैठे हुए हैं। और तुम बदवाएं लेने के लिए काम कर रहे हो, हुकूमत में आए हुए हो, तुम दुआएं लो भाई हुकूमत से, तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए, तुम्हारी पूरी अवाम सिक्योरिटी है। अगर तुम अच्छे काम करो तो अच्छे काम करें तो पूरी अवाम इन लीडरों की सिक्योरिटी है। सर सीएम साहिबा ने आप ही ने कितने 100 प्रोजेक्ट देते ने, काम ते कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ना छेड़ें जो पुराने हैं, उनको अगर छेड़ना चाह रहे हैं ना, उसको जनाब यूटिलाइज करें, इस मार्केट को तरक्की वाली मार्केट बना के दें, उसको साफ सुथरी मार्केट बना के दें, लेकिन मार्केट यहाँ से ना गैप करें, मार्केट यही होनी चाहिए जी, और लेकिन अच्छी और खूबसूरत मार्केट बननी चाहिए, ये सबके लिए आसानियाँ पैदा हो। का सिस्टम इस मार्केट से 5000 लड़के बाहर से आते हैं जो नौकरी करते हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, 8 फरवरी के यानी 7 फरवरी को रात को मैं हॉस्पिटलाइज से डिस्चार्ज होके आया, मुझे बहुत ज़बरदस्त अटैक आया, हॉस्पिटलाइज से डिस्चार्ज होके मैं आया और सुबह मैंने जनाब पूरी इनकी कंपेन की, इनको वोट डलवाए और ये हमारा ये हमें सिला मिल रहा है। शेम अपनी गाड़ी पे चोई साहब, अपनी गाड़ियां 3 लगाई हुई थी हमने। छोटे भाई प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, वन लाइनर। ओ मियां साहब जरदारी साहब बहुत जल्दी जाने वाले हैं। नहीं सर, हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं उनसे कि हम तमाम ताजर बहुत परेशान हैं, हमारे पहले फाइनेंशियली हालात बहुत ख़राब हैं, हमें मजीद तंग ना किया जाए, हमें अपने बच्चों का रिस्क कमाने दें और हमारी नौकरियां लगी हुई हैं। सर आपने अवामी राय सुन ली, इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के साथ कि हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, और जो ताजर कम्युनिटी
कमेटी इस वक्त परेशान है। अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदके मरियम साहिबा के दिल में और मियां नवाज शरीफ साहब के दिल में कोई रहम डाले, इनके दिल में रहम डाले, इनको ये समझने की सलाहियत दे। मियां साहब के जी शहबाज पाकिस्तान के दिल में भी रहम डाले, इन्हें समझने की सलाहियत दे कि लोगों के कई दहाइयों के स्टेक्स लगे हुए हैं, लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, ताजर नहीं अफोर्ड कर सकता। और अंदरून शहर का ताजर, ये बात मेरा खुद अंदरून शहर से ताल्लुक है, कश्मीरी गेट मेरा जंपल हुआ है, ये बेसिकली प्रो नून लीग है। अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो फिर फैसला आपने करना है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।